Hello everyone and welcome back to the Chemistry Box, your one-step chemistry guide. Today we are here with a new video on nomenclature of alkenes. So let's see what are alkenes and how to do the IUPAC nomenclature of alkenes. So now let's see what is the basic information about alkenes. As you can see here, the general molecular formula for alkenes is CnH2n, where N is the number of carbon atoms present in that molecule. They are also known as olefins, and the smallest member in this family is ethene. As you understand, alkenes will be having one double bond at least, so that means we need at least two carbon atoms to form that double bond. So यहाँ पे सबसे smallest member जो है वो 2 carbon atom वाला compound होगा, that is ethene. Now let's see what is the basic nomenclature process of alkenes. Now under IUPAC nomenclature of alkene जो सबसे basic rule है वो ये है कि हमारा जो parent alkane है, how do we identify parent alkane? कितने number of carbon atoms है, तो कितने number है उसी हिसाब से हमारा जो parent alkane होता है उसी के हिसाब से हम alkene का नाम रखेंगे. As in एक example के साथ समझते हैं. Now as I told you, the smallest member of this family is containing 2 carbon atom. This is ethene molecule. Now we also have names like ethylene, but in IUPAC names we are only going to use it as ethene. So I'll write down the name over here. Now as you can see, very easily हमें ये समझ में आता है कि 2 कार्बन एटम वाला जो अल्केन होता है वो होता है ईथेन. अब ईथेन के ही नेम से हमने डिराइव किया है इस ए को रिमूव करके इनटू ई, एंड दैट मेक्स द कंपाउंड अल्कीन ईथीन. सो यहाँ पे हमने समझ लिया कि हमारा जो पेरेंट अल्केन है उसी में से हमको अल्कीन का नाम निकालना है. सो इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड है इसका नाम रखने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दिस इज बेसिकली 3 कार्बन एटम्स कंटेनिंग कंपाउंड. दिस इज प्रोपीन. प्रोपेन में से ही हमने डिराइव किया है प्रोपीन. नाउ एज यू कैन अंडरस्टैंड, प्रोपीन में ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है. कहीं पे भी हो हमेशा वो फर्स्ट कार्बन पे ही होगा. सो आइदर यू कैन राइट डाउन प्रोपीन और यू कैन ऑल्सो राइट डाउन 1 प्रोपीन. That doesn't make any difference. Either you can write 1 propene or just simply propene. Now we move on to the next example so that we find out कि अगला रूल क्या है. यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है. आप देख सकते हो कि दोनों जो है ब्यूटेन से डिराइव किए हुए हैं. Now the only difference that you can see in both the compounds is that यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो टर्मिनल पे है, while यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो बीच में है. नाउ एज यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमें नंबरिंग करने की जरूरत है. अब नंबरिंग कैसे करेंगे? हम लोग को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को नंबर करना है विच कंटेन्स द डबल बॉन्ड. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ सो मुझे नंबरिंग इस साइड से करनी होगी बिकॉज द डबल बॉन्ड इज नियरेस्ट टू दिस साइड. ऑलराइट, सो दिस विल बी 1, 2, 3 and 4. Since it contains 4 carbon atom, the parent is butane. So butane में से मैं इसका नाम डिराइव करूंगी. So butene होगा. Now as you can see, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम के बीच में है. So we will take the lowest number, that is 1, and this becomes. There is also another way of writing this, that is but 1ene. Either you write 1 butene or you can write but 1ene. It is the same. Now as we come on to this side, we see that the double bond is between the second and third carbon atom. मैं चाहे इस साइड से नंबर करूं या उस साइड से नंबर करूं, दोनों में जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो सेम ही होगा. सो मैंने यहाँ से नंबरिंग कर लिया है एंड मेरे पास है अगेन 4 कार्बन एटम वाला कंपाउंड. सो दिस विल बी अगेन ब्यूटीन. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इट इज बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम, सो इट विल बी 2 ब्यूटीन. Also we have an alternative name, that is but 2ene. So यहाँ पे हमें second rule पता चल गया है, which is whenever you have a compound और उसमें double bond है, हमें longest chain of carbon atoms को number करना है, but this longest chain should be containing the double bond.
Let's move on to few other examples. Now, in the next example, we are going to deal with compound जिसमें substituents भी लगे हुए हैं. As you can see in the first structure, यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन की लॉन्ग चेन है और उसमें एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है. हम शुरू करेंगे इसको नंबरिंग करने से. As you can understand कि मैं अगर इस साइड से नंबरिंग करूंगी तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नंबरिंग में कम आएगा, यानी कि पास में आएगा. अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूंगी तो 1, 2, 3 एंड 4, 5. सो दैट मीन्स मेरा जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा. वेल अगर मैंने इस साइड से नंबरिंग की 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट मीन्स मेरा जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड पोजीशन पे आएगा. सो दैट मीन्स कि मुझे जो नंबरिंग करनी है वो इस साइड से करनी है, सो दैट आई कैन गेट द डबल बॉन्ड एट द लोएस्ट कार्बन एटम. सो आफ्टर नंबरिंग हमारे कंपाउंड का जो नेमिंग है वो हम कैसे करने वाले हैं. एज यू कैन सी कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फोर्थ पोजीशन पे है, सो इट विल बी 4 मिथाइल एंड हमारा जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड पोजीशन पे है, सो इट कैन बी 2 pentene. So it is 4 methyl 2 pentene, or also you can write it 4 methyl pent 2-in as per you see. Now we move on to the second structure that we have over here. अब इस स्ट्रक्चर में सबसे पहला काम जो है वो हमें ये करना है, choosing the longest carbon chain. Now many a times students make a very common mistake of taking the horizontal chain as the longest chain. वो नोटिस ही नहीं करते हैं कि उनका जो सब्स्टिट्यूएंट है कहीं वो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा तो नहीं. सो दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू सी कि यहाँ पे आई हैव अ मिथाइल ग्रुप व्हाइल हियर आई हैव एन इथाइल ग्रुप व्हिच मेक्स दिस द लॉन्गेस्ट चेन. सो दैट मीन्स व्हाट, हमारे पास ये जो मिथाइल ग्रुप है दिस इज गोइंग टू बी अ सब्स्टिट्यूएंट. नाउ फॉर नंबरिंग वी नीड टू सी दैट द डबल बॉन्ड इज एट दिस पोजीशन. सो अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूंगी तो ये डबल बॉन्ड जो है वो लोएस्ट नंबर पे नहीं आ पाएगा. सो देयरफॉर मुझे जो नंबरिंग करनी है वो यहाँ से करनी है. दैट मीन्स आई हैव 1 and 2 कार्बन एटम ओवर हियर. दिस विल बी थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ. So that means now I have 3 methyl, 3 hexene. I hope this is very clear. Now we move on to the next examples. Now in the next structure we have different types of substituents. So इसको कैसे name करना है? Let's see. Now I have a structure over here where you can see I have methyl substituent and ethyl substituent. So सबसे पहले हमारे basic rule से चालू करेंगे. That means we are going to number the chain. Now numbering the longest chain will begin from this side. As you can see हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है एंड सिक्स्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है. But we are going to move alphabetically and therefore the ethyl group will be coming first in the name and then the methyl group. So we have 6 ethyl, 2 methyl, we have octene लेकिन थर्ड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, so this is 3 octene. मेक श्योर दैट जब भी आप नेम्स के बीच में नंबर्स लिख रहे हैं उनको हाइफन से डिफरेंशिएट करना ना भूलें. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन. एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक सिमेट्रिकल अल्कीन है. इसमें भी हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को मार्क कर लेते हैं. सो एज यू कैन सी दिस कुड बी योर लॉन्गेस्ट चेन, राइट. Now, if this is the longest chain, then this is 1, 2, 3 and 4 carbon atom. Here we have substituent on the second and third carbon atom. So this is 2, 3, this is dimethyl since both the substituents are same. So this is dimethyl, this is 2-butene. So that's so simple. Let's move on to the next example. नेक्स्ट वी आर टेकिंग कंपाउंड्स जहां पे एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स है. सो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है एज यू कैन सी इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम लेकिन इसमें 2 डबल बॉन्ड है. इसको सबसे पहले नंबर करते हैं. नाउ इफ यू सी अगर हम इस साइड से नंबर करेंगे तब भी हमें सेम नंबरिंग मिलेगा जो कि हमें इस साइड से मिलेगा.
सो देयरफॉर हम किसी भी एक साइड से नंबरिंग कर सकते हैं. आई हैव डन इट लाइक दिस. नाउ द पेरेंट कंपाउंड इज ब्यूटेन. सो मैंने ब्यूट लिख दिया है. नाउ सी दैट हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ब्यूटा 1 and 3. दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे मेरे पास अल्कीन है. सो 1,3. So, buta 1,3 diene. You can also write it as 1,3 butadiene. Now, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोटिस करना है वो ये है कि हम लोग ब्यूटेन का डायरेक्टली ब्यूटीन या ब्यूटाइन नहीं कर रहे हैं. वी आर यूजिंग अ ए ओवर हियर. सो यू शुड सी दैट यहाँ पे जो ये ए लिखना है वो बहुत ही कंपल्सरी है. इट इज नॉट ब्यूटाडाइन, इट इज ब्यूटाडाइन. इफ यू फॉरगेट दिस ए तो ये नाम पूरा रॉन्ग हो जाएगा एंड देयरफॉर दिस ए इज वेरी इंपॉर्टेंट. Either you write down this numbers in the beginning or in the middle, that doesn't make any difference, but make sure कि आप numbers को comma से separate कर रहे हैं and बाकी के नाम में and numbers के बीच में एक hyphen डाल रहे हैं. If we go to the next structure, as you can see यहाँ पे हमारे पास पेंटेन की एक चेन है. पेंटेन के अंदर हमने 2 डबल बॉन्ड्स इंसर्ट किए हैं. इफ यू सी मैं यहाँ से नंबरिंग कर सकती हूँ एंड यहाँ से कर सकती हूँ. बट अगर मैं यहाँ से करूंगी तो मेरे डबल बॉन्ड्स जो है वो लोएस्ट नंबर पे नहीं आएंगे एंड देयरफॉर मैं नंबरिंग करूंगी इस साइड से. सो आई हैव 1 2 3 4 5. नाउ माय double bonds are at first carbon atom and third carbon atom. So this is 1 3 pentadiene. Do not forget to write this A. It is not pentadiene, it is pentadiene. Okay? So now we move on to the next structure. Now we have a very simple structure to name over here. जहाँ पे हमारे पास एक simple long chain है, but यहाँ पे हमारे पास है 3 double bond. Now, as you see, हमारे पास जो लॉन्ग चेन है सबसे पहले उसे नंबर करना है. If I number it from this side or the other side, it is going to so I have numbered the carbon chain as you can see. Now हमारा जो डबल बॉन्ड है वो आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड फिफ्थ पोजीशन पे. So I'll simply write down 1, 3, 5. Now this is a derivative of hexane. तो यहाँ पे मेरे पास आएगा hexa. Now since there are 3 double bonds, so this becomes hexatriene. Simple. So जितने भी number of double bonds होंगे उनको नेमिंग करते वक्त पहले उनके पोजीशंस बताने हैं एंड कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, डाइन, ट्राइन, टेट्राइन ऐसे वर्ड्स का यूज करके उनका नाम फाइनलाइज करना है. आई होप कि इसके बाद अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. बट स्टिल इफ यू गॉट सम डाउट्स आप उसको कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं. इफ यू हैव गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to the channel and share this video with your friends. Till then I see you in the next video. Bye bye.